Hello children, hope you're all doing good. Let's start today's chapter, sound. Warm-up exercise. Every day we hear sounds from various sources like humans, birds, bells, machines, vehicles, televisions, radio, etc. Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears. When you clap, a sound is produced. You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How the blindfolded person is able to guess which player is closest to her or him? Is it sound which tells who is closest to her or him? एवरी डे हम बहुत सारी साउंड सुनते हैं, है ना. साउंड आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक सेंसेशन ऑफ हियरिंग प्रोड्यूस करते हैं हमारे ईयर्स में. जैसे कि आप क्लैप करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होती है. हाइड एंड सीक का आप जब गेम खेलते हैं तो आप ब्लाइंड फोल्डेड होते हैं लेकिन फिर भी आप रिमेनिंग प्लेयर्स को कैच कर लेते हैं, है ना. तो कैसे गेस करता है कि कौन उसके क्लोजेस्ट है, कौन सा प्लेयर. एक्चुअली ये साउंड है जो बताता है कि हमें कौन हमारे पास है. साउंड प्रोडक्शन. Sound is produced only when the source producing the sound vibrates. That is, it oscillates at its mean position, performing to and fro motion. Sometimes the vibrations produced are visible. Example, the ringing of bell in temple or in school. While in some cases the vibrations produced are invisible and only the sound is heard. Example, when we play a drum or a harmonium. We can only hear the sound but do not see vibrations. Take a drum and place some dry rice grains on its membrane. Hit the membrane slightly, you will hear a faint sound and also see the dry rice grains dancing up and down. It happens because of the vibrations produced in the membrane, but it is hit gently. देखिए साउंड का प्रोड्यूस होता है जबकि जो सोर्स है साउंड का वो साउंड को वाइब्रेट कर रहा है, राइट. यानी कि ऑसिलेट हो रहा है अपनी मीन पोजीशन में, टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म कर रहा है. तो कई बार जो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है वो विजिबल होते हैं, जैसे कि जो बेल की रिंगिंग होती है आपके टेम्पल या स्कूल में, जबकि कुछ केसेस में वाइब्रेशन इनविजिबल होते हैं. जैसे कि जब आप ड्रम या हारमोनियम प्ले करते हैं, ओके, हमें सिर्फ साउंड सुनाई देती है बट हमें वाइब्रेशंस नहीं दिखाई देते. आप एक ड्रम लीजिए और उसके ऊपर ड्राई राइस ग्रेन्स को डालेंगे उसके मेम्ब्रेन पे. जब आप मेम्ब्रेन को हिट करेंगे स्लाइटली आपको एक फेंट साउंड सुनाई देगी. फिर जो ड्राई राइस ग्रेन्स है वो अप एंड डाउन आपके डांस करेंगे. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुआ है मेम्ब्रेन में जब इसको हिट किया गया है. Activity 1. Take a tuning fork and set it vibrating by striking its prong on a rubber band. Bring it near your ear. Do you hear any sound? Touch one of the prongs of the vibrating tuning fork with your finger and write your experience in your notebook. देखिए tuning fork ये इस तरह से होता है आपका. आपने क्या करना है, आपने इसकी वाइब्रेटिंग इसकी सेट करनी है. कैसे? आप इसके प्रोंग्स को किसी रबर पैड में आप सेट करेंगे, फिर आप इसे अपने ईयर के पास लेकर आएंगे तो आपको साउंड सुनाई देगी. और आप कोई भी प्रोंग्स को टच करें वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क का अपने फिंगर से और अपनी एक्सपीरियंस आपने लिखे नोटबुक में. Sound in humans. In humans, the sound is produced by the voice box or the larynx. Put your fingers on the throat and find a hard bomb that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of air. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. Muscles attached to the vocal cords can make the cords tight or loose. When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different from that when they are loose and thin. Humans में साउंड प्रोड्यूस कौन करता है? देखिए वॉइस बॉक्स ऐसे लारिंग्स भी कहा जाता है. जैसे अगर अपनी फिंगर्स को अपने थ्रोट पे आप रखेंगे तो आप हार्ड बॉम्ब आपको फाइंड करेंगे जो जब आप स्वॉलो करते हैं तो मूव करता है. तो ये जो पार्ट है बॉडी का दैट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स. ये आपके विंड पाइप के अपर एंड में होता है. दो वोकल कॉर्ड्स इसमें स्ट्रेच्ड होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स इस तरह से कि एक इसमें क्या होता है कि एक नैरो स्लिट होती है. ओके, इट लीव्स अ नैरो स्लिट बिटवीन देम फॉर द पैसेज ऑफ एयर. तो जब लंग्स से जो फोर्स करती है एयर इस स्लिट के थ्रू तो जो वोकल कोर्ड्स है वाइब्रेट होते हैं एंड साउंड प्रोड्यूस करते हैं. मसल्स जो वोकल कोर्ड्स के साथ अटैच होती हैं वो क्या करती हैं? कोर्ड्स को टाइट या लूज करती हैं. तो जो वोकल कोर्ड्स आपके टाइट और थिन होते हैं तो टाइप और क्वालिटी जो वॉइस की वो डिफरेंट होती है व्हेन ये लूज और थिक होते हैं. Factors affecting the sound. Sound is produced by the vibrating bodies. The vibrations are actually oscillations produced at a higher speed. An oscillatory motion of a body, example, a pendulum, is characterized by its amplitude, time period and frequency. Sound देखिए vibrating bodies से प्रोड्यूस होती है. तो वाइब्रेशंस एक्चुअल में आपके ऑसिलेशंस जो हैं जो आपकी हायर स्पीड में प्रोड्यूस होते हैं. तो जैसे कोई ऑसिलेटरी बॉडी मोशन है बॉडी का, जैसे कि पेंडुलम की अगर हम बात करें तो
ये आपका कैरेक्टराइज होता है इसके एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी से. द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑसिलेटिंग बॉडी इन मीटर्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड क्या होता है? जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑसिलेटिंग बॉडी ने कवर किया इन मीटर्स में अपनी मीन पोजीशन से. The time period of an oscillating body directly depends on its amplitude, because with increasing amplitude, the time period, that is the time taken to complete one vibration, also increases. The time period of an oscillating body is inversely proportional to the frequency. Frequency is defined as the number of oscillations produced per second. That is, frequency is equals to 1 upon time period. Frequency is measured in hertz. The frequency of 1 hertz means number of oscillations per second. That is, if an object oscillates 10 times in a second, its frequency becomes 10 hertz. तो देखिए जो टाइम पीरियड है किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है एम्पलीट्यूड में. यानी कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, राइट? और जो टाइम पीरियड होता है किसी भी ऑसिलेटिंग बॉडी का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी की. तो देखिए फ्रीक्वेंसी होता है आपका 1 बाय टाइम, राइट? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड आपका कम होगा, और आपका फ्रीक्वेंसी कम होगी तो टाइम पीरियड ज़्यादा होगा. फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, एंड फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड. जैसे कि ऑब्जेक्ट है आपका ऑसिलेट हो रहा है 1 सेकेंड में 10 टाइम्स, तो उसकी फ्रीक्वेंसी है 10 हर्ट्ज. Activity 2. Make a pendulum using a string of length 50 cm. Tie a bob of mass 25 gram with a hook to one of its ends and the other end to a hook or an iron stand. Take the pendulum to one of its sides at position M and gently release it. The moment you release the mass, switch on the stopwatch. Stop the watch when the bob arrives at M again after passing through position O twice. Record the time taken and repeat the exercise thrice to measure the average time period. Using the time period, measure the frequency of the pendulum. अब आप एक पेंडुलम बनाएंगे जिसमें आपने एक स्ट्रिंग लेनी है जिसकी लेंथ होगी 50 सेंटीमीटर. उसमें आप बॉब को टाई कर देंगे जिसका मास होगा 25 ग्राम एक हुक से, और इसके एंड्स को, और जो दूसरा एंड है आपने इसको हुक से टाई करना है ऑन एन आयरन स्टैंड. फिर पेंडुलम को आपने इसकी साइड्स पे लेके जाना है पोजीशन एम पे, और जिस तरह से आपको देखिए पोजीशन एम दिएगा और जेंटली उसको रिलीज करना है. फिर जो मोमेंट जैसे ही आप मास को रिलीज करेंगे ना, तो आपने क्या करना है? स्टॉप वॉच को स्विच ऑन कर देना है. फिर आपने वॉच को बंद करना है. आपने जैसे ही जो बॉब है वो एम पे वापस आ जाता है, ठीक है? पहले देखिए जैसे एम से स्टार्ट हुआ ये ओ पे जाएगा, देन वापस ये आपका एम पे जाएगा, राइट? रिकॉर्ड द टाइम टेकन एंड रिपीट द एक्सरसाइज. ये आपने थ्राइस करना है 3 बार, जिससे कि आप एवरेज टाइम पीरियड निकाल सकें. द स्पीड ऑफ साउंड. Like all waves, the speed of sound depends on the matter through which it travels. Sound waves travel faster through solids and liquids. Table 1 shows the speed of sound in different materials. Activity 3. Take a plastic bottle and cut its bottom part. Fix an electric bell with the cork at its mouth as shown in figure. Connect the bell to a battery with the switch in between. Switch on the bell. It starts vibrating and we can hear its sound. Now cover the cut bottom part with a membrane and hear the sound. Compare this sound with the previous sound. Now create a vacuum using a vacuum pump and record your observation. आपने एक प्लास्टिक बॉटल लेनी है और उसका बॉटम को कट करना है. फिर एक इलेक्ट्रिक बेल को आपने फिक्स करना है कॉर्क से इसके माउथ पे, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है, राइट? एंड फिर आप बेल को कनेक्ट करेंगे बैटरी से एक स्विच के साथ इन बिटवीन. बेल को स्विच ऑन करना है, फिर ये वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाएगी और आपको साउंड सुनाई देगा. अब आपने जो बॉटम पार्ट था जो उसको कवर कर देना है, हमने इसको कट कर दिया था, मेम्ब्रेन से कवर करेंगे और साउंड सुनेंगे. अब आपने इस साउंड को पहले वाली साउंड के साथ कंपेयर करना है. अब आपने वैक्यूम क्रिएट कर देना है. वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे? वैक्यूम पंप की हेल्प से. एंड इसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन आती है आपने उसको रिकॉर्ड करना है. The speed of sound through a material increases as the temperature of the material increases. The effect of temperature is greatest in gases. For example, the speed of sound in air increases from about 330 meter per second to about 350 meter per second as the air temperature increases from 0 degree Celsius to 30 degree Celsius. देखिए जो स्पीड है साउंड की किसी भी मटेरियल में वो इंक्रीज होती है अगर टेम्परेचर उस मटेरियल का इंक्रीज होता है. तो जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है सबसे ज़्यादा आपका देखा जाता है गैसेस में. जैसे कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर में इंक्रीज होती है आपकी 330 मीटर पर सेकेंड से लेके 350 मीटर पर सेकेंड. जैसे आपका जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है 0 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस. तो देखिए यहाँ पे स्पीड आपको दी हुई है, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मटीरियल्स. The speed of light decreases with the increasing density of the medium through which it passes. Example, its speed is maximum in vacuum and minimum through transparent solids. On the contrary, the speed of sound is maximum in solids. Example, steel. The speed of sound increases with increasing density of the medium and is zero in vacuum. Light can propagate through vacuum also. It doesn't require any medium for its propagation. On the contrary,
Sound cannot travel through vacuum as it requires the presence of a medium to travel. The speed of the sound can easily be calculated using the relation. Speed is equals to distance upon time. जो लाइट की स्पीड है वो डिक्रीज होती है जैसे ही जो डेंसिटी की मीडियम की इंक्रीज हो जाती है जिसमें ये पास हो रहा है. जैसे कि एग्जाम्पल, इसकी स्पीड जो है मैक्सिमम होगी वैक्यूम में और मिनिमम होगी किसी भी ट्रांसपेरेंट सॉलिड में. जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड में, जैसे कि आपका स्टील, और जो साउंड की स्पीड होगी वो इंक्रीज हो जाती है आपकी विद द इंक्रीजिंग डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और आपकी जीरो रहती है आपके वैक्यूम पे. तो लाइट जो है वो तो वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर लेती है, बट इसको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी प्रोपोगेशन के लिए, जबकि साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. राइट. तो जो स्पीड होती है साउंड की हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. राइट. Example 1, find the speed of a sound of a bullet that was fired 4 km away from a person if the person hears the sound of the shot after 12 seconds. So आपको distance given है, distance आपके पास है 4 किलोमीटर, जिसे आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 मीटर. एंड टाइम, व्हाट इज द टाइम? 12 सेकेंड. अब आपको क्या निकालना है? स्पीड निकालना है. स्पीड, यू नो दैट डिस्टेंस अपॉन में टाइम. तो जब आप 4000 को डिवाइड करेंगे 12 से तो ये आंसर विल बी 333.33 meter per second. This is the speed. Okay. Example 2, find the distance between an observer and a bursting cracker. If the observer hears the sound after 2 seconds, speed of sound in air is 340 meter per second. अब आपको distance निकालना. तो देखिए distance क्या होता है? distance का फॉर्मूला होता है speed into में time. Time आपको given है, speed आपके पास कितनी है? 340 meter per second. अब आप इसको easily निकाल सकते हैं मल्टीप्लाई करके. The loudness of sound. What makes a sound loud or soft? The girl can make a loud sound by clapping the cymbals together sharply. She can make a soft sound by clapping the cymbals together gently. The difference is the amount of energy the girl gives to the cymbals. Loud sounds have more energy than soft sounds. अच्छा देखिए, कोई भी साउंड आपकी सॉफ्ट और लाउड क्यों होती है? जैसे कि गर्ल जो है एक लाउड साउंड को क्रिएट कर सकती है अगर वो सिम्बल्स को, ये आपके जो सिम्बल्स हैं, इनको वो शार्पली क्लैप करे दो, फिर वो सॉफ्ट साउंड भी इसमें से क्रिएट कर सकती, प्रोड्यूस कर सकती जब जो सिम्बल्स को वो जेंटली जो है वो क्लैप करेगी. तो डिफरेंस जो है वो है अमाउंट ऑफ एनर्जी गर्ल ने कितना दिया सिम्बल्स को. यानी कि लाउड साउंड में ज़्यादा एनर्जी होती है कंपैरेटिवली सॉफ्ट साउंड. इंटेंसिटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट अ वेव कैरीज पास्ट अ सर्टेन एरिया each second is the intensity of the sound. A person standing close when the girl claps the cymbals would hear an intense sound. The sound would be less intense for someone standing farther away. The intensity of sound waves is related to the amplitude. Sound with greater amplitude also has a greater intensity. अच्छा, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि एक वेव कैरी करती है वो एक सर्टेन एरिया तक आपकी जाती है हर सेकेंड. ओके, दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. जैसे कि जो पर्सन, जो गर्ल ने जब सिंबल आपके क्लैप किए उसके पास खड़ा है तो उसको इंटेंस साउंड सुनाई देगी, जबकि जो दूर है उसको आपको एक लेस इंटेंस साउंड सुनाई देगी. तो जो इंटेंसिटी होती है साउंड वेव्स की वो रिलेटेड होती है आपकी एम्पलीट्यूड से. तो अगर देखिए ग्रेटर आपका एम्पलीट्यूड होगा तो उसकी इंटेंसिटी भी ग्रेटर होगी. The decibel scale and loudness. The intensity of sound waves is measured in units of decibel. The softest sound a person can hear has an intensity of 0 decibel. Normal conversation has an intensity of about 50 decibel. Sound with intensities of about 120 decibel or higher are painful to people. Loudness is the human perception of the intensity of sound waves. Each increase of 10 decibel of intensity multiplies the energy of the sound waves 10 times. Most people perceive this as a doubling of the loudness of the sound. An intensity increase of 20 decibel correspond to 100 times the energy and an increase in loudness of about 4 times. जो साउंड वेव्स की इंटेंसिटी उसको मेजर किया जाता है डेसिबल में. तो जो सॉफ्टेस्ट साउंड एक पर्सन सुन सकता है उसकी इंटेंसिटी होती है 0 डेसिबल. ओके, एंड नॉर्मल कॉन्वर्जेशन जो होती है वो 50 डेसिबल की होती है, जबकि अगर 120 से ऊपर डेसिबल का अगर साउंड की इंटेंसिटी होती है तो वो काफ़ी पेनफुल हो जाता है. सो लाउडनेस आपका क्या है कि ये लाउडनेस ह्यूमन परसेप्शन है ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव्स. Frequency and pitch. The frequency of sound waves is determined by the frequency of the vibrations that produce the sound. Recall that wave frequency is measured in units of hertz, which is the number of vibrations each second. On the musical scale, the note C has a frequency of 262 hertz. The note E has a frequency of 330 hertz. People are usually able to hear sounds with frequencies between 20 hertz and 20,000 hertz. Pitch is the human perception of the frequency of sound. The sound forms a tuba have a low pitch and the sounds from a flute have a high pitch.
Sounds with low frequencies have low pitch and sounds with high frequency have high pitch. देखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड वेव्स की उसको हम डिटरमिन करते हैं बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं. एंड वेव, आपको पता है वेव फ्रीक्वेंसी को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, राइट जो आपके क्या है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ईच सेकेंड. म्यूजिकल स्केल में जो नोट सी है उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 262 हर्ट्ज है, जबकि नोट ई की फ्रीक्वेंसी है 330 हर्ट्ज. तो पीपल जो है, लोग जो है यूजुअली साउंड को जब सुनते हैं वो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, यानी 20 हर्ट्ज से कम होगा तो वो नहीं सुनाई देगा, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होगा वो भी आपका नहीं सुनाई देगा. तो देखिए जो साउंड जिनमें लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनकी लो पिच होती है, एंड साउंड जिनकी हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनकी हाई पिच होती है. नो योर साइंटिस्ट. Heinrich Rudolf Hertz was born on 22nd February 1857 in Hamburg, Germany, and educated at the University of Berlin. He confirmed J.C. Maxwell's electromagnetic theory by his experiments. He laid the foundation of future development of radio, telephone, telegraph, and even television. He also discovered the photoelectric effect, which was later explained by Albert Einstein. The SI unit of frequency was named as Hertz in his honor. Heinrich Rudolf Hertz, ये इनका जन्म हुआ था हैम्बर्ग में एंड जर्मनी में है जो, और इन्होंने एजुकेशन ली थी यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से. इन्होंने जो फर्दर डेवलपमेंट था रेडियो, टेलीविजन, टेलीग्राफ और टेलीविजन का, इन्होंने उनकी फाउंडेशन रखी. इन्होंने थियोरी दी थी मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की अपने एक्सपेरिमेंट से. और जो SI यूनिट है फ्रीक्वेंसी की वो भी इन्हीं के नाम पर ही रखी गई है, यानी कि हर्ट्ज. Hearing and the ear. The ear is a complex organ that can detect a wide range of sounds. You may think that the ear is just the structure that you see on the side of your head. However, the ear can be divided into three parts: the outer ear, the middle ear, and the inner ear. The outer ear. The outer ear is a sound collector. It consists of the part that you can see and the ear canal. The visible part is shaped somewhat like a funnel. This shape helps the visible part collect sound waves and directs them into the ear canal. तो देखिए जो आउटर पार्ट है जो विजिबल है आपको, ये आपका साउंड कलेक्टर है. और आपका ये क्या है, ये विजिबल पार्ट इस तरह से शेप्ड है जैसे कि आपका फनल होता है. तो ये शेप हेल्प करता है कि विजिबल पार्ट को साउंड कलेक्ट करने में. द मिडल पार्ट, द मिडल ईयर इज अ साउंड एम्पलीफायर. इट कंसिस्ट ऑफ द ईयर ड्रम and 3 tiny bones called the hammer, the anvil, the stirrup. Sound waves that pass through the ear canal cause the eardrum to vibrate. These vibrations are transmitted to the 3 small bones which amplify the vibrations. अब मिडिल ईयर को साउंड एम्पलीफायर कहा जाता है. इसमें आपका ईयर ड्रम है और 3 आपकी छोटी बोन्स हैं जो हैं आपकी हैमर, द एनवल एंड द स्टरप. तो जो साउंड वेव्स पास करती हैं ईयर कैनाल में वो ईयर ड्रम को क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं. यानी वाइब्रेशन जो है इन 3 छोटी बोन्स में ट्रांसमिट होता है जो कि वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करते हैं. द इनर ईयर कंटेन्स द cornea. The cornea is filled with fluid and is lined with tiny hair-like cells. Vibrations of the stirrup bone are transmitted to the hair cells. The movement of the hair cells produce signals that travel to your brain where they are interpreted as sound. इनर ईयर में आपका कॉलिया होता है. तो कॉलिया फिल्ड होता है आपके फ्लूइड से एंड ये लाइंड होता है विद टाइनी हेयर लाइक सेल्स. तो वाइब्रेशंस जो आपके स्टरअप बोन के ट्रांसमिट होते हैं हेयर सेल्स में. फिर जो मूवमेंट होता है हेयर सेल्स का वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारे ब्रेन तक जाते हैं एंड देन दे आर इंटरप्रेटेड एज साउंड. द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. हैव यू एवर स्टूड इन एन एम्प्टी रूम एंड हर्ड इकोज दैट व्हेन यू टॉक्ड वेरी लाउडली? Echoes are sounds that reflect off surfaces. Repeated echoes are called reverberation. Concert halls and auditoriums are designed with soft materials on the ceilings and walls to avoid too much reverberation. Theaters, like the one in which figure, often have curtains on the walls because sounds won't reflect off soft surfaces. The curtains absorb the energy of the sound waves. आप खाली रूम में अगर बहुत तेज से बोलते हैं तो आपको अपनी इको सुनाई देती है ना. तो इकोज आपकी वो साउंड होती हैं दैट रिफ्लेक्ट ऑफ सर्फेसेस. तो रिपीटेड जो इकोज होती है उन्हें कहते हैं रिवर्बरेशन. तो जैसे कॉन्सर्ट हॉल्स होते हैं या ऑडिटोरियम्स होते हैं उसमें ये इस तरह से डिज़ाइन होते हैं सॉफ्ट मटेरियल के साथ सीलिंग्स में या वॉल्स में जिससे कि ज़्यादा रिवर्बरेशन ना हो, उसको अवॉइड किया जा सके. एंड थिएटर्स में आपके ऑफन कर्टन्स होते हैं वॉल्स में क्योंकि जो साउंड्स हैं वो आपके सॉफ्ट सर्फेस से रिफ्लेक्ट नहीं होती. तो कर्टन्स क्या होते हैं, वो ज़्यादा साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैन बी यूज टू लोकेट और आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स. Echolocation is the process of locating objects by bouncing sounds off them. Bats, dolphins, and other animals emit short, high-frequency sound waves toward a certain area. By interpreting the reflected waves, the animals can locate and determine properties of other animals. Doctors use reflection of sound waves in medicine.
अच्छा, जो रिफ्लेक्शन है साउंड का, इसको यूज़ किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट या आइडेंटिफाई करने के लिए। इको लोकेशन जो है एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को लोकेट किया जाता है बाय बाउंसिंग साउंड्स ऑफ देम। बैट, डॉल्फिन या दूसरे एनिमल्स हैं, शॉर्ट हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को क्या करते हैं, एमिट करते हैं एक सर्टेन एरिया में, राइट। एंड बाय इंटरप्रेटिंग द रिफ्लेक्टेड वेव्स, एनिमल्स क्या है, लोकेट करते हैं और डिटर्मिन करते हैं दूसरे एनिमल की प्रॉपर्टी को। डॉक्टर्स रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं इन मेडिसिन। Computers can analyze ultrasonic waves that reflect off body part to produce an internal picture of the body. These pictures help doctors monitor pregnancies, heart problems and other medical कंडीशंस। तो देखिए साउंड वेव्स के थ्रू जो डॉक्टर्स रहते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी को मॉनिटर करते हैं, फीटस को चेक करते हैं, या हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, कोई अदर मेडिकल कंडीशंस। म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। A musical sound is a regular, smooth and pleasant sound with definite pitch. A device used to produce a musical sound is called a musical instrument. A musical instrument may be using vibrating strings, vibrating columns of air, vibrations in wood, metal or stretched membranes. A cross classification of musical instruments is also made on the basis of generation of sound, namely by blowing, by plucking or by striking. The different types of the musical instruments have therefore been grouped into 3 families. These are म्यूजिकल साउंड आपकी रेगुलर, स्मूथ, प्लेजेंट साउंड होती है जिसका डेफिनेट पिच होता है। इस तो एक डिवाइस को यूज़ किया जाता है जिससे कि म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है, दैट इज कॉल्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपके या तो उसमें वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स होते हैं या कॉलम्स होते हैं एयर के, या वाइब्रेशन होता है वुड में, मेटल में या स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स में। तो ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको 3 फैमिलीज में ग्रुप किया गया है। नंबर 1 इज स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स। दिस क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स गोज far back in the history. They may be plugged, bowed or struck. The pianoforte or piano has the strings of fixed length. The strings are struck in the piano to produce a musical sound. The other musical instrument that use plugged strings of varied length include sitar, veena, harp and guitar. A very important group of string musical instrument is violin and double bass. These instruments are bowed to produce the sounds of different pitch. Violin produces the musical sound of the highest pitch and the double bass produces the lowest pitch musical sound. देखिए आपके स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जैसे कि इसमें स्ट्रिंग्स होते हैं आपके जिनको प्लग किया जाता है, बो किया जाता है, स्ट्रक किया जाता है। जैसे पियानो है, इसमें आपकी स्ट्रिंग्स होती है फिक्स लेंथ की, स्ट्रिंग्स को स्ट्रक किया जाता है पियानो में, जैसे कि म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है। और आपके कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में प्लग किया जाता है आपके स्ट्रिंग्स को वेरीड लेंथ, जैसे कि जिसमें जैसे सितार, वीणा, हार्प या गिटार है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ स्ट्रिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वायलिन एंड डबल बेस। ये इंस्ट्रूमेंट्स आर बोर्ड टू प्रोड्यूस साउंड्स ऑफ डिफरेंट पिच। वायलिन जो है वो म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है हाईएस्ट पिच की, जबकि जो डबल बेस है वो लोएस्ट पिच की म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस करता है। विंड इंस्ट्रूमेंट्स। दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज द ब्रास and woodwind instruments. The brass instruments are usually made of brass but sometimes silver. They differ in the method of varying the length of the ear column. A trombone has a slide that alters the length of the ear column. The trumpet has valves that are used to introduce additional sections of ear column. The brass instrument uses the lips as a double reed to set the system in vibration. Woodwind instruments such as clarinet use reeds of different kinds that determine their quality. The organ is a wind instrument consisting of pipes or wood or metal. It can reproduce the quality of different wind instruments and of string instruments to some extent. Other wind instruments include flute, shehnai, pongi or bean and natswara. ये जो instruments हैं इनको classify किया गया as brass and wood wind instruments. ये जो brass instruments होते हैं usually brass से बने होते हैं but कई बार silver से। तो ये differ करते हैं in the method of varying the length of the ear column. आपका जो ट्रॉम्बोन है इसमें स्लाइड होता है जो कि एयर कॉलम की लेंथ को ऑल्टर करता है। आपके ट्रम्पेट में वॉल्स होते हैं जो कि इसमें एडिशनल सेक्शंस ऑफ एयर कॉलम होते हैं। ब्रास इंस्ट्रूमेंट जो है लिप्स को यूज़ करता है एज अ डबल रीड जो कि फिर सेट करता है सिस्टम इन वाइब्रेशन। आपका जो विंड इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे कि क्लैरिनेट, इसमें रीड्स आपके डिफरेंट काइंड्स के यूज़ होते हैं जो कि उनकी क्वालिटी को डिटरमिन करते हैं। तो दूसरे विंड इंस्ट्रूमेंट्स में आपके जैसे फ्लूट, शहनाई, नादसरा ये सारे भी इंक्लूडेड है। Percussion musical instruments. This class of instruments is struck themselves rather than having strings to be struck or plucked by a person. They include vibrating bars and membranes. The stretched membranes are used in drums of various kinds such as tabla, dholak and mridangam. A drum is a coupled system in which the struck membrane forces the opposite membrane to vibrate until all the energy is used up. Cymbals, bells, gongs and jal tarang are metals tuned to one pitch, hence are called metallic percussion instruments. ये जो क्लास है इंस्ट्रूमेंट्स की इनको स्ट्रक किया जाता है
मतलब इनमें स्ट्रिंग्स नहीं होते कि इनको हम प्लग करें या स्ट्रक करें, तो इनमें आपके वाइब्रेटिंग बार्स या मेम्ब्रेन्स होते हैं, जैसे तबला, ढोलक या मृदंगम है। ड्रम आपका एक कपल्ड सिस्टम होता है जिसमें जब स्ट्राइक किया जाता है तो मेम्ब्रेन फोर्स करता है ऑपोजिट, जो उसका अपोजिंग मेम्ब्रेन होता है कि वाइब्रेट करता है जब तक कि सारी एनर्जी आपकी यूज़ नहीं हो जाती। ओके, तो ये जैसे आपके ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये सारे आपके ट्यून्ड होते हैं वन पिच में, इसीलिए इन्हें कहा जाता है मेटालिक परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। Noise pollution. A sound that lacks musical quality is called noise. The unwanted sound which is released into the environment and causes disturbance and discomfort for human beings is called noise pollution. A noise has no definite pitch, so it is rough, irritable, and unpleasant. The hooting sound of vehicles heard at the four-way crossing, a fast-running whistling train passing by, or a flying aircraft produce noise that is very unpleasant and irritable. Rapid industrialization and unplanned use of vehicles and other means of transport have resulted in noise pollution that affects the hearing ability and creates a danger of deafness to people who are continuously exposed to noise pollution. It is for this reason that people working in industries are advised to use devices to protect their ears. वो साउंड जिसकी म्यूजिकल क्वांटिटी जिसमें नहीं होती वो नॉइज होता है। अनवांटेड साउंड जो कि आपका एनवायरनमेंट में रिलीज होता है उसकी वजह से ह्यूमन बींग्स में डिस्टर्बेंस, डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है और उसे कहते हैं नॉइज पोल्यूशन। नॉइस की देखिए कोई डेफिनेट पिच नहीं होती, तो रफ, इरिटेबल और अनप्लेजेंट होती है। जैसे कि जो हूटिंग साउंड होता है व्हीकल्स का, या जो आपका जैसे विस्लिंग ट्रेन है, आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, या आपके जैसे डीजेस की में जो बहुत तेज़ आपकी आवाज़ होती है, ये सारी अनप्लेजेंट एंड इरिटेबल होती है। तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से और जो अनप्लान्ड यूज़ हो रहा है व्हीकल्स का या दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का, इसकी वजह से नॉइस पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है। और इसकी वजह से देखिए लोगों में डेफनेस का प्रॉब्लम आ रहा है ना, अगर वो कंटिन्यूसली नॉइस पोल्यूशन में एक्सपोज रहेंगे तो इस रीज़न की वजह से लोग जो हैं, जैसे जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, उनको यूज़ किया जाता है कि वो ऐसे डिवाइसेस का यूज़ करें जिससे वो अपने ईयर्स को प्रोटेक्ट कर सके। Note for the chapter. Sound is produced by vibrating objects. There are two factors, amplitude and time period, that determine the characteristics of sound. The loudness of a sound depends on the amplitude of vibration. The eardrum senses the vibrations of sound. It sends the signals to the brain. This process is called hearing. Sound requires the presence of a medium for its propagation. Its speed is the fastest in solids and the slowest in gases. A pleasant sound that is smooth and soothing to ears is called musical sound. The devices played to produce musical sound are called musical instruments. Most of the animals, including human beings, use vocal cords to produce sound. Children, I hope आपको चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।